Hello students, I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to continue our exercise of chapter number 1. Right? Let's start the question number 1.12, which is what is the concentration of sugar having molecular formula C12H22O11 in the mole per liter if its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liter. Right? We have to find out the concentration for the sugar solution. Right? When we add 20 gram of sugar and make a solution of 2 liter, means for this question we have to find out molarity. Then the mass of solute is given, which is 20 gram, right? And the volume of solution is also given, which is 2 liter, right? Whenever you have to calculate this type of numericals, first of all write which is given and what you have to find out, right? So the numerical will be so simple for you. Now the formula for the molarity is equal to weight of solute divided by molar mass of solute into volume of solution. Here we are taking a volume of solution in liter, right? So we don't have to multiply by 1000, right? Now replace all the terms. Here we need a molecular mass of solute. So find out the molecular mass of solute. Molecular having a molecular formula C12H22O11. So the atomic mass of 12 carbon plus atomic mass of 22 hydrogen and atomic mass of 11 oxygen, right? The carbon having 12 atomic mass, hydrogen having 1 and oxygen having 16, right? Replace all the values and calculate that. You will get 342 gram per mole molecular mass for the glucose. Say now, sugar. Now replace the mass of solute, molar mass of solute and volume of solution. So you will get the molarity for the solution, right? Now our next question, exercise 1.13. Pressure is determined as force per unit area of the surface. The SI unit of pressure, Pascal, is as shown below, right? 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. If mass of air at sea level is 1034 gram per centimeter square, calculate the pressure in Pascal, right? यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, तो पहले तो हमें जो प्रेशर है उसकी डेफिनेशन दी गई है. प्रेशर क्या होता है, तो कोई भी अगर सरफेस हो गई उसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं पर यूनिट एरिया तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रेशर. प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है वो कौन सा है, पास्कल. 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब ऐसा बोला गया है कि जो हमारा सी लेवल है उसके ऊपर जो हमारा जो एयर है उसका मास कितना है, 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. मीन्स के पर यूनिट पर जो मास है वो दिया गया है और हमें उसके लिए प्रेशर फाइंड आउट करना है इन द पास्कल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द दिस डेफिनेशन वी राइट द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर. सो प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यही हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया. सही है. अब फोर्स क्या होता है, तो फोर्स इक्वल टू mg, राइट? g is a gravity constant, right? Now here you can see that the value of mass per unit area is given, right, which is 1034 gram per centimeter square. Means the value of this term is given m by a, राइट? आप उससे यहाँ जो उसका यूनिट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि ग्राम किसके लिए होता है, तो मास के लिए. तो यहाँ पे ये हो गया, मास हमारा m हो गया. और जो सेंटीमीटर स्क्वायर है वो किससे रिप्रेजेंट करता है, तो एरिया को. तो मतलब ये जो m बाई ए है हमें दिया गया उसकी ये वैल्यू दी गई है और g तो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हमें पता है. तो जो वैल्यू दी गई है m बाई ए की वो रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि वैल्यू किसकी दी गई है, मास पर यूनिट एरिया. तो ये भी यही हुआ ना, मास
पर यूनिट एरिया। सही है, तो वैल्यू कितनी दी गई है 1034 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू जो जी है उसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, एक यूनिट सेंटीमीटर और ग्राम में है और दूसरा है हमारा मीटर में, मतलब हमें किसी एक को कन्वर्ट करना होगा। आप इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन है उसमें और कुछ दिया गया है कि जो पास्कल में हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है उसकी रिलेशन दी गई हमें न्यूटन पे मीटर के साथ दी गई है। सही है, मतलब कि अगर न्यूटन पे मीटर के साथ हमें उसकी रिलेशन दी गई है तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें वही बेटर होगा। सही है, तो अगर हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो वो कितना हो जाता है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, मीन्स के 10⁻³ लिख सकते हैं हम इसे। सही है, ये ऊपर जाएगा यहाँ पे होगा तो लिख सकते हैं 10⁻³ किलोग्राम, और अगर ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम, मतलब कि 1 ग्राम के इक्वल टू हो गया 10⁻³ किलोग्राम। सही है, अब यहाँ पे जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻² मीटर। यहाँ पे जो सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर ले तो यहाँ पे भी हो जाएगा 10⁻² का स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। सही है, बात समझ में आई, तो यही लिखा है 10⁻² उसका स्क्वायर, तो अब ये यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। सही है, तो जो हमें वैल्यू ग्राम और सेंटीमीटर में दी गई थी उसे हमने क्या किया, किलोग्राम और मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। अब जो हमारा 10⁻⁻4 था हम उसे ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगी। सही है, क्योंकि क्या होता है ऊपर जाते हैं तो माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम ऐसा लिख सकते हैं 10⁻³ और 10⁻⁴ ऐसा था हमारे पास। सही है, क्योंकि -2 का स्क्वायर होता है -4, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 10⁻³ माइनस -4, मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10⁻³ + 4। सही है, तो यहाँ पे हो गया 1034 इंटू 10⁻³ + 4। यूनिट क्या आ गया हमारा, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, और साथ में जो 9.8 है एम पर सेकंड स्क्वायर है वो तो है ही जी का। अब यहाँ पे क्या होगा -3 + 4 मतलब कि 10⁻1, यहाँ पे आप पावर लिखो ना लिखो चलेगा, तो ये सारे जो डिजिट्स है वो मैंने साथ में लिख लिया है और ये जो सारा यूनिट था वो मैंने साथ में लिख लिया। तो इसकी जो कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 101,332। सही है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वो किसका यूनिट है, तो वो यूज होता है न्यूटन के लिए। सही है, इस चैप्टर में आपने पढ़ा है डिफरेंट जो हमारे यूनिट्स है उसके ऐसा एकम के साथ हमने उसको आपने कंपेयर किया हुआ है। सही है, तो यहाँ पे जो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वो किसका यूनिट है, तो हमारा न्यूटन बनता है उससे। सही है, ये सारे हम ऐसा यूनिट्स को जोड़ ले तो वो क्या बन जाएगा, न्यूटन। तो मतलब यहाँ पे हमारा यूनिट आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सारा हो गया न्यूटन और यहाँ पे मीटर स्क्वायर था, और आगे ही हमें क्वेश्चन में दिया गया था 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है, तो हम इसकी जगह पास्कल भी लिख सकते हैं। सही है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ 2 के बाद 0 है ऐसा बोल सकते हैं। अगर हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड के साइड क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी प्लस, यहाँ पे कितना शिफ्ट कर रहे हैं तो ये 2 3 4 और 5 डिजिट हम डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। सही है, तो जो हमें पूछा गया था कि जो एयर है उसके थ्रू सी सरफेस पे कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो वो कितना होगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। आई बात समझ में। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्या है एक्सरसाइज 1.14। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, हाउ इज इट डिफाइंड, राइट। तो आंसर हमारा क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, राइट। मास का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, किलोग्राम, और वी कैन से दैट 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। सही है कि ये जो किलोग्राम हमने डिसाइड किया गया है 1 किलोग्राम, वो कैसे है, इंटरनेशनल स्केल पे हमने सभी के लिए एक जैसा मास डिसाइड किया है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
वो क्या है हमारा एक्सरसाइज 1.15, मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्स विद देयर मल्टीपल्स, राइट। हमें यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में दी गई है उसके मल्टीपल्स, उसके साथ हमें उससे मैच करना है। तो यहाँ पे हम उसके आंसर लिखते जाएंगे। यहाँ पे हमें पहला दिया गया है माइक्रो। माइक्रो का मीनिंग क्या होता है 10⁻⁻�6, मतलब जो हमारा फर्स्ट है उसके साथ आ जाएगा हमारा सी। दूसरा है डेका। डेका मतलब होता है 10, तो यहाँ जो दूसरा है उसके साथ आ जाएगा हमारा ई, सही है। देन मेगा। मेगा का मीनिंग होता है 10⁻6, मतलब ये तीसरे के साथ आ जाएगा हमारा 10⁻6, मतलब ये हो गया। जो चौथा है वो क्या है गीगा। गीगा का मतलब होता है 10⁻9, तो हमारा फोर्थ के साथ आ जाएगा बी। और जो रह गया हमारा फिफ्थ फेम्टो। फेम्टो के साथ हमारा आ जाएगा 10⁻15, सही है। तो ये हो गए आपके मैचेस। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज 1.16। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। नाउ the total number of figure in a number including the last digit whose value is uncertain is called number of significant digits, right। significant figures किसे कहते हैं, तो जब भी हम किसी भी डिजिट की बात करें, सही है, किसी भी मेजरमेंट की बात करें या किसी भी कैलकुलेशन की बात करें, तो उसमें क्या होता है जो सारे सर्टन डिजिट्स होते हैं, सही है, उसके साथ अगर हम एक अनसर्टन डिजिट ऐड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। सपोज कि आपने अपनी जो बॉल पेन है या फिर पेंसिल है उसकी लेंथ मेजर की, वो क्या आई 10.4 सेंटीमीटर आई, सही है। सपोज कि आपकी पेंसिल है उसकी जो लेंथ है वो कितनी आई 10.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो 10 है वो क्या हो गया सर्टन हो गया कि वो फिक्स है, 10 सेंटीमीटर तो है, लेकिन अब ये 4 है वो एग्जैक्ट 4 है या नहीं आप नहीं बोल सकते हो, सही है। वो कितना हो सकता है 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या 3.8 भी हो सकता है, सही है। मतलब 10.40 आपने लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो 3.8 भी हो सकता है, 3.7 भी हो सकता है, 4.2 भी हो सकता है, सही है। मतलब ये जो डिजिट है वो क्या है तो सर्टन नहीं है, वो अनसर्टन है, वो फिक्स नहीं है। तो उससे क्या बोलते हैं, तो ये सारे सर्टन डिजिट और उसके साथ का जो एक अनसर्टन डिजिट आ गया उसे क्या बोलेंगे हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स, सही है। तो अगर यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा था, क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने जो लिखा था वही 10.4, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, सही है। ये अगर मेरे पास है 0.002 तो उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे 1, क्यों, तो ये स्टार्टिंग 0 है। जो सिर्फ ये 2 की क्या बताते हैं आपको पोजीशन बताते हैं कि वो थर्ड नंबर की पोजीशन पे है, डेसिमल के बाद वो थर्ड नंबर की पोजीशन पे क्या है 2 है। इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये जो 0 है वो सिर्फ 2 की पोजीशन हमें बताते हैं लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है। मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हुए तो ओनली 1 ही हुए। आई बात समझ में। था आपने इस चैप्टर में बहुत सारे रूल्स भी पढ़े सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, तो उसी तरह उस रूल के अकॉर्डिंग आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेजर कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो ना। Our next question 1.17. A sample of drinking water was found to be severely contaminated with the chloroform having formula CHCl3 supposed to be a carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm by mass. First you have to find out express this in the percentage by mass, and second determine the molarity of क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल, राइट। हमें क्या दिया गया है तो एक वाटर सैंपल दिया गया है, ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल दिया गया है जिसमें क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, सही है। उसका अमाउंट कितना है तो 15 ppm दिया गया है। जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसमें क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है और वो कितना प्रेजेंट है तो 15 ppm के अकॉर्डिंग उसकी कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, सही है। अब इस 15 ppm को हमें किस में दिखाना है तो एक्सप्रेस दिस इन द परसेंटेज बाय मास, कि अगर हम मास परसेंट फाइंड आउट करें तो उसके अकॉर्डिंग इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, क्योंकि पीपीएम भी क्या है तो कॉन्सेंट्रेशन के ही एक पार्ट है। हम कॉन्सेंट्रेशन को डिफरेंट यूनिट में, सही है, कि
मेजर कर सकते हैं। सपोज कि कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपने स्टडी कर लिया मोलारिटी, राइट, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन। वैसे ये जो ppm है वो क्या है, तो एक कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है, यूनिट है, तो हम कॉन्सेंट्रेशन ppm में भी मेजर कर सकते हैं। सही है, आपने ऐसे न्यूमेरिकल्स किए हैं क्या, आपको मोलारिटी में दिया गया हो कॉन्सेंट्रेशन और आपको उसको किस में फाइंड आउट करना है, मोलारिटी में, या तो फिर आपको मास परसेंटेज में दिया गया हो और आपको मोलारिटी या मोलालिटी फाइंड आउट करनी है। वैसे ही यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन दी गई है ppm में और उसमें से आपको फाइंड आउट करना है उसे किस में, परसेंटेज बाय मास में, और दूसरा आपको डिटरमाइन करना है मोलालिटी। सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 ppm का मतलब क्या होता है, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, मीन्स कि 15 ppm हो जाएगा 15 पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि मिलियन बोला गया है तो मिलियन कितना होगा, 10 to the power 6। तो जो अगर हम 10 to the power 6 जितना क्या ले सॉल्यूशन ले, तो उसका जो 15 पार्ट होगा उतना क्या है, हमारा क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट you have to express this concentration in the percentage by mass, right? So percentage by mass equal to mass of solute divided by mass of solution into multiply by 100, right? Here from this statement you can say that the mass of solute is 15, right? Then mass of solution is 10 to the power 6, so replace that value and simplify that, so you will get 1.5 into 10 to the power minus 3%। सही है, तो अगर 15 ppm अगर इम्प्योरिटीज वहां पे प्रेजेंट है क्लोरोफॉर्म की, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3% बाय मास के अकॉर्डिंग हमारे सॉल्यूशन में क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है। अब उसी कॉन्सेंट्रेशन को हमें मोलालिटी के टर्म में भी फाइंड आउट करना है, तो मोलालिटी की फॉर्मूला क्या हो जाती है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। सही है, यहाँ पे जो हमें बात की गई है वो किस में करते हैं हम, तो ग्राम में, और अगर हमने ग्राम में यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट लिया है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000। सही है, वी ऑलरेडी नो दैट द मास ऑफ सॉल्यूट इज 15। Now we want mass of molecular mass of solute. So calculate the molecular mass of solute. The formula for the molecule is chloroform is CH_Cl3. So replace the atomic mass of that all elements. So you will get the molecular mass for the chloroform will be a 119.5 gram per mole. Right, now here we want the mass of solvent, but if you see the statement which we written already, in that we have a mass of solution, right? But mass of solution, we can say that mass of solution equal to mass of solvent minus mass of solute। सही है, ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मास ऑफ सॉल्यूशन है 10 टू द पावर 6 है, मास ऑफ जो सॉल्यूट है यहाँ पे वो कितना है, हमारे पास 15 है। सही है, और हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। अगर आप इतनी बड़ी टर्म में इतना फिगर ऐड करते हो तो इतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसके कंपेयर में मास ऑफ सॉल्यूट के कंपेयर में जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। सही है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास फॉर द solute is very less than that of the mass of solution। सही है, और अगर ऐसा है तो जो हमारा mass of solution है it is nearly equal to mass of solvent। सही है, क्योंकि अगर आप उसमें से इतनी सी टर्म क्या करो, आप माइनस करो या ना करो, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सही है, तो यही चीज है कि आपके पास बोलते हैं ना कि समुद्र, जो हमारा समुद्र है वो बहुत बड़ा है, उसमें से अगर आप 1-2 लोटा पानी ले भी लो तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा, या फिर आप 1-2 लोटा पानी ऐड भी कर दो उसमें तो अभी कोई चेंज नहीं आएगा। वैसा ही है कि यहाँ पे जो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन है वो समंदर के जैसा है, और जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो क्या है, तो 1 लोटे के पानी जितना है, तो आप उसमें ऐड करो या यहाँ से निकाल दो, कोई चेंज नहीं आएगा समुद्र के पानी में। वैसे ही जो मास ऑफ सॉल्यूशन है उसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा,
उसी वजह से मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली मास ऑफ सॉल्वेंट ले लिया है 10⁻⁶। यहाँ पे हमें इसे -15 करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द मोलालिटी इक्वल टू 1.255 इंटू 10⁻⁻4 मोलल। सही है, स्मॉल m होता है मतलब मोलल होता है ना। Our next question is 1.18. Express the following in scientific notation. Right, we have to express this digit into scientific notation. तो जो भी scientific notation है उसमें क्या होता है, तो उसमें हम उसे कैसे 10⁻⁴ में लिखते हैं। सही है, हम उसे किस में लिखते हैं, 10⁻⁴ में, n इंटू 10⁻n और x जो भी आप लिखो। सही है, तो यहाँ पे जो n होता है वो उसके पास डेसिमल के पहले सिर्फ एक डिजिट आता है। सही है, तो यहाँ पे हम देखें तो इससे अगर साइंटिफिक नोटेशन में हमें कन्वर्ट करना है तो हमारे पास तो हमें क्या लिखना चाहिए, 4.8। अब यहाँ पे 10⁻⁴ में क्या आएगा, जो इसका एक्सपोनेंट है वो क्या आ जाएगा, तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डेसिमल है। वहां से हमें किस साइड जाना है, राइट साइड जाना है। सही है, कौन सी साइड जाना है, राइट साइड। कितने डिजिट जाता है, तो 1, 2 और 3। सही है, ये जो हमारा डेसिमल है उसे हम कितना 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। अगर हम राइट साइड जा रहे हैं तो वो किस में काउंट होगा, माइनस होगा। सही है, अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो क्या होगा, प्लस होगा, और अगर राइट साइड जाते हो तो माइनस होगा। सही है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, मतलब लास्ट डिजिट के पास बाद हम डेसिमल को काउंट कर सकते हैं। सही है, एक भी डेसिमल ना हो, मतलब हम जो लास्ट वाला डिजिट है वहां पे हम डेसिमल को काउंट कर सकते हैं। अब हमें इसे भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मतलब लिखना है तो हमें तो सिर्फ 2.34 के अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ पे तो कैसा दिया गया है, तो हमें 2,34,000 दिया गया, हमें तो 2.34 के अकॉर्डिंग लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को 1, 2, 3, 4 और 5 डिजिट कौन से साइड ले जा रहे हैं, लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं। और लेफ्ट साइड जाते हैं तो क्या होगा, प्लस होगा, तो मतलब हो जाएगा 2.34 इंटू 10⁵ राइट। यहाँ पे 8008 है, मतलब यहाँ पे हम इसे 0 को कंसिडर कर लेंगे। सही है, यहाँ पे भी हमें कौन से साइड जाना है, लेफ्ट हैंड साइड जाना है। कितने डिजिट, तो 1, 2, 3। जितने डिजिट आप शिफ्ट करते हो वही आपको 10 के पावर में लिखने हैं। अगर लेफ्ट साइड आप शिफ्ट कर रहे हो तो वो आएगा प्लस में, अगर राइट साइड आप शिफ्ट कर रहे हो तो वो आएगा माइनस में। सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8.008 इंटू 10⁻⁻3। सही है, अब आगे बात करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, सॉरी -3 नहीं, +3 आएगा। अब आगे हम बोलते हैं तो यहाँ हमारा है 500.0। सही है, तो यहाँ पॉइंट दिया गया है, उससे हमें 1 और 2 डिजिट ले जाना है, तो हो जाएगा 5.00 इंटू 10⁻। कितने डिजिट हमने शिफ्ट किए, तो ये पहला और ये दूसरा, तो यहाँ आ जाएगा 10⁻²। सही है, यहाँ पे तो ऑलरेडी एक डिजिट के बाद ही हमारा डेसिमल है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना। लेकिन हमारा साइंटिफिक नोटेशन तो कहता है हमारे पास 10 के पावर में भी कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10⁻0, क्योंकि 10⁻0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। सही है, तो आप इस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगा, क्योंकि 1 क्या होता है, यूनिट फॉर द मल्टीप्लीकेशन। तो ऐसे आप किसी भी टर्म को क्या कर सकते हो, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या याद रखना है, अगर लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो प्लस होगा और राइट साइड जा रहे हो तो माइनस होगा ना। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, सिग्निफिकेंट फाइंड आउट करना है। अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो ऑल द रूल्स अकॉर्डिंग अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है, यहाँ पे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो क्या होगा, हमारे पास है 0.0025। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, सही है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि ये जो 3 0 है वो क्या है, स्टार्टिंग 0 है, और स्टार्टिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट राइट। तो हमारे पास सिर्फ ये 2 डिजिट है कि जो कितने हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। सही है, अब बात करते हैं हम क्या यहाँ पे, तो 208 की। तो यहाँ पे हमें पता है जो पहला रूल ही था कि जो भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट।
और अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में 0 है तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट हो गए, उसके बीच में 0 है मतलब ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने हुए? 3। ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, और उनके बीच 0 आया तो वो भी सिग्निफिकेंट। सही है। वैसे ही यहाँ पे अगर आप बात करो तो कितना हो जाएगा? 5 और 5 दोनों सिग्निफिकेंट है, उसके बीच का 0 भी क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4। सही है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हमारे पास है 1 2 6 000। पर यहाँ पे अगर आप देखो तो कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। अगर यहाँ किसी भी डिजिट में लास्ट में 0 होता है और वो क्या हो? बिफोर डेसिमल हो, तो दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? ओनली 1 2 और 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ पे अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? तो यहाँ पे भी तो 0 है, लेकिन ये 0 एंडिंग 0 है, ये भी एंडिंग 0 था। सही है, समझ रहे हो? यहाँ पे सिग्निफिकेंट लिखेंगे हम 4, ये 5 और ये 3 0 भी काउंट होंगे सिग्निफिकेंट में। अच्छे से समझना क्यों। तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी एंडिंग 0 है, ये भी एंडिंग 0 है। हमने पहले में ही बात कर दी कि स्टार्टिंग 0 जो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। सही है। जो स्टार्टिंग 0 होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट। जो एंडिंग होते हैं वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। लेकिन कब? तो एंडिंग 0 में हमें ये देखना है कि वो बिफोर डेसिमल है, सही है, या फिर आफ्टर डेसिमल है। जो वो बिफोर डेसिमल पॉइंट होगा तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा नहीं, और अगर वो आफ्टर डेसिमल है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, मतलब ये तीनों 0 बिफोर डेसिमल वाले हैं, और बिफोर डेसिमल वाले एंडिंग 0 काउंट होते नहीं है। जबकि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो है डेसिमल पॉइंट है उसके बाद भी एक 0 है, और डेसिमल के बाद का जो 0 है वो सिग्निफिकेंट 0 होता है। सही है। और ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, ये 5 तो नॉन 0 है तो सिग्निफिकेंट ही हुआ। तो दो सिग्निफिकेंट के बीच के जो 0 होंगे वो भी तो सिग्निफिकेंट होंगे। तो उसी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 और 4 डिजिट है जो सिग्निफिकेंट है हमारे। सही है। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? तो ये 1 2 3 4 और 5, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स तो कैसे है? नॉन 0, तो सिग्निफिकेंट है। ये भी सिग्निफिकेंट, और दो सिग्निफिकेंट के बीच का क्या आ जाएगा? सिग्निफिकेंट ही। इन दोनों को ठीक से समझना। सही है। स्टार्टिंग 0s आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट्स। अगर 0s ही है, अगर कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है, तो वो तो नॉन सिग्निफिकेंट ही हुए। लेकिन एंडिंग 0 में आपको देखना पड़ेगा वो बिफोर डेसिमल है या आफ्टर डेसिमल है। यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, मतलब वो बिफोर हुए, तो बिफोर वाले नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, और जो आफ्टर वाले होते हैं वो कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। और दो सिग्निफिकेंट के बीच वाले जो बिटवीन 0 होते हैं वो भी कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, नाउ our next question 1.20, राउंड ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। राइट, हमें क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। कब तक? तो जब तक हमारा जो टर्म है उसमें कितने 3 सिग्निफिकेंट्स ना रह जाए तब तक उसे हमें राउंड ऑफ करना है। सही है। अब यहाँ पे पहले हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस 6 को हम राउंड ऑफ के लिए यहाँ से निकालेंगे। ये अब यहाँ पे क्या है? तो 5 से ग्रेटर देन है। 5 से ग्रेटर देन है तो क्या करेंगे? जब इसे निकालेंगे तो एक आगे में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 34.22। इसे निकाला, ये डिजिट 5 से ज्यादा वाला था तो आगे में एक ऐड कर दिया, तो हो जाएगा 34.22। अब यहाँ पे तो 4 हुए, हमें तो सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट तक ही चाहिए, तो हमें इस 2 को भी निकालना पड़ेगा। अब ये 2 क्या है? तो लेस देन 5 है, तो उससे जब भी हम लेस देन 5 कोई भी नंबर होता है तो अब आगे में हमें ऐड करना नहीं होता है, तो हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ 34.2 हो जाएगा राउंड ऑफ। आई बात समझ में? एक एक को रिमूव करते जाओ, आप इजीली समझ पाओगे। अब यहाँ पे आप देखो तो इस 7 को हमें रिमूव करना है, इट इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? आगे वाले में एक ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 10.411, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया? एक निकाल दिया, आगे में एक ऐड कर दिया, तो हो जाएगा क्या? वो 1 हो जाएगा। सही है। अब क्या होगा?
तो यहाँ से हमें क्या करना है, अभी भी यहाँ पे तो आप देख सकते हो तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, हमें तो 3 ही चाहिए, तो मतलब इस 1 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा, ओमिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए राउंड ऑफ क्या होगा, तो ये क्या है, लेस देन 5 है, तो आगे में कोई चेंज नहीं आएगा आगे वाले डिजिट में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1। अभी भी एक ज्यादा है तो इसे एक को भी निकाल देंगे, तो वो भी क्या है, लेस देन 5 है, तो यहाँ भी आ जाएगा 10.4। अब यहाँ पे आप देखो तो क्या है, हमारे 3 डेसिमल्स सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, सही है। अब इसकी बात करें हम, तो यहाँ पे क्या 7 को निकालना है, तो आगे वाले में क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.04। अब क्या है, अगर आप देखो तो 9 है, 9 में एक ऐड करोगे तो 10 आएगा, मतलब यहाँ 0 और एक आगे जाएगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि 59 है, उसमें एक ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे आप सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करो तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3। ये अगर 0 नहीं लिखा तो सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रह जाएंगे, तो आपको एक 0 कंपलसरी लिखना है, क्योंकि ये 2 0 स्टार्टिंग 0 है और नॉन सिग्निफिकेंट है, सही है। तो ये 3 सिग्निफिकेंट हो गए यहाँ पे, मतलब आपको इसका राउंड ऑफ लिखना होगा विद द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो क्या हो जाएगा 0.0460। ये 0 भी सिग्निफिकेंट 0 में काउंट होगा, क्योंकि आफ्टर डेसिमल वाला एंडिंग 0 है, सही है। चलो यहाँ पे अगर आपको करना है तो ये क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ आगे एक ऐड करेगा तो हो जाएगा 281। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये तो सिग्निफिकेंट यहाँ पे 3 डिजिट हो गए, सही है। लेकिन अगर आप देखो तो ये हमें जो दी गई थी वो कैसी है, 2808 डिजिट दिया गया है, और हमने जो उसका राउंड ऑफ बनाया वो तो क्या हो गया, 281। तो राउंड ऑफ कभी ऐसा नहीं होता, उसके आसपास का ही डिजिट होता है, सही है। तो हमें तो 3 सिग्निफिकेंट चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप 10 लिख दो, क्योंकि यहाँ पे 8 आगे गया, यहाँ पे 4 डिजिट था, उसमें से आप 3 नहीं बना सकते हो, सही है। 4 से 3 कभी नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ आप राउंड ऑफ कर रहे हो, तो यहाँ 2000 का 200 नहीं कर सकते हम। अगर हमने ये लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 है ना, 8 किसके नियर होता है, तो 10 के नियर होता है, तो हम पूरे ये 2 डिजिट की जगह 10 लिख सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये 0 तो डेसिमल के पहले वाला 0 है, मतलब नॉन सिग्निफिकेंट है, तो ये 3 ही सिग्निफिकेंट हुए, तो ये पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी, इसका राउंड ऑफ होगी, जिसके पास सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये 0 सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, सही है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस, राइट। इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, ओके। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स द्वारा जो भी टॉपिक है इतना ज़्यादा टफ नहीं है, और साइंटिफिक नोटेशन में याद रखना, अगर लेफ्ट साइड जाओ तो प्लस करना है और राइट साइड जाओ तो माइनस करना है, ओके। होप यू क्लियर, ओके। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।